ایک بادشاہ تھا، اس کی 6 بیویاں تھیں، مگر خدا کی شان اولاد ایک سے بھی نہ تھی۔ تخت کا وارث نہ ہونے سے بادشاہ کو بڑی فکر ہوئی اور اسی غم میں اس کا جی دنیا سے اکتا گیا۔ وزیروں نے یہ حال دیکھ کر آپس میں صلاح کی اور ایک دن اکیلے میں عرض کیا کہ حضور اتنے پریشان نہ ہو، اللہ پر بھروسہ کر کے ایک شادی اور کریں۔ کیا عجب ہے کہ اس کی تقدیر سے سلطنت کا چراغ روشن ہو جائے۔ مشورہ نیک تھا، بادشاہ راضی ہو گئے اور 7ویں شادی کے لیے لڑکی تلاش ہونے لگی۔ شہر میں کوئی بڑھیا تھی، بڑی خستہ حال، زمانے کی ستائی، دن بھر چرخا پونی کرتی تو کہیں روکھی سوکھی روٹی میسر آتی۔ اس کے گھر میں کمانے والے سب مر گئے تھے، فقط ایک نواسی تھی جسے وہ اپنی آنکھوں کا تارا سمجھتی تھی۔ لڑکی اللہ کی قدرت کا نمونہ تھی، ایسی خوبصورت کہ ہزاروں میں ایک۔ جو بڑی ہوتی گئی اس کے حسن کی دھوم بڑھتی گئی۔ بڑے بڑے امیروں کی بیٹیاں اس سے ملنے کی آرزو کرتی، اپنی سہیلی بنانا چاہتی، لیکن بڑھیا اسے کہیں نہیں جانے دیتی تھی اور کہتی رہتی تھی کہ بیٹی، جھونپڑے میں رہ کر محلوں کا خواب نہیں دیکھا کرتے، غریبی اور امیری کا جوڑ نہیں۔ مگر بچپن پھر بچپن ہوتا ہے، نہ کوئی بہن تھی نہ بھائی جس سے کھیلتی دل بہلاتی۔ پڑوس میں 3 اچھے گھر تھے، ایک چھوٹے وزیر کا، ایک درباری سوداگر کا اور ایک شاہی بقاول کا۔ ان کی بیٹیاں کبھی کبھی اسے بلا لیتی اور آپس میں مل کر گڑیا کھیلتی، باتیں کرتی۔ پاس ہی بادشاہ کا باغ تھا، گھر میں جی گھبراتا تو وزیر ذاتی اپنی 3 سہیلیوں کو ساتھ لے کر باغ میں جا بیٹھتی، وہاں پردہ ہو جاتا اور پھر یہ چاروں وہاں کھیلتی پھرتی۔ ایک روز شام کا وقت تھا، 4 سہیلیاں باغ میں کہیں کھیلتے کودتے ایک طرف گھاس کے ہرے ہرے فرش پر بیٹھ کر باتیں کرنے لگی۔ باتوں باتوں میں وزیر زادی نے کہا، مجھ پر اجلے پیر کا سایہ ہے، میرے بدن پر نہ کوئی کپڑا میلا ہوتا ہے نہ پرانا ہوتا ہے، میری جس سے شادی ہوگی وہ نہال ہو جائے گا۔ سوداگر کی بچی بولی، میں کوئی ردیا خودیا نہیں، مجھے بھی فقیر کی دعا ہے، میں جس موتی کو ہاتھ لگا دوں کالا ہو تو سفید ہو جائے، مجھ سے بیاہ کرنے والا بھی غریب نہیں رہ سکتا۔ باورچی کی بیٹی کہنے لگی، تم نے مجھے کیا سمجھا ہے، میرا کمال بھی سنو، میں ایک دفعہ جو کھانا پکا لوں گی وہ کم نہ ہوگا اور نہ ہی خراب ہوگا، کتنے ہی آدمی کھائیں مجال ہے اس میں کمی آئے۔ غریب بڑھیا کی نواسی کا نمبر آیا تو وہ بیچاری ایک ایک کا منہ دیکھنے لگی۔ لڑکیاں اس کو کہنے لگی، بہن تم بھی تو بتاؤ تم میں کیا وصف ہے۔ جب بہت تنگ ہوئی تو نیچے نظر کر کے بولی، بہن مجھ میں کوئی بات ہو تو کہو نا، نانی اماں کہتی ہیں کہ جس وقت میں پیدا ہوئی تھی کسی نجومی نے کہا تھا کہ اس لڑکی کے ہاں 2 جڑواں بچے پیدا ہوں گے، ایک لڑکا ایک لڑکی، لڑکے کے ماتھے پر چاند ہوگا اور لڑکی کی تھوڑی پر تارا۔ اتفاق کی بات اسی وقت بادشاہ بھی ٹہلتا ہوا آ پہنچا۔ اس نے جو دیکھا کہ 4 خوبصورت لڑکیاں ہنس ہنس کر باتیں کر رہی ہیں، چھپ کر سننے لگا۔ دل میں قریب تھی، یہ باتیں جو سنی تو اچنبا سا ہو گیا۔ دولت کی تو کیا کمی تھی، بادشاہ تھا، اولاد کے ارمان تھے، سوچا کہ یہ غیب کی آواز ہے، اس چوتھی لڑکی سے ہی بیاہ کرنا چاہیے، سورہ شکل میں بھی پری ہے اور سب سے زیادہ تو یہ کہ اولاد کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اپنے دل میں فیصلہ کر کے محل میں آیا، وزیر کو بلا کر ان لڑکیوں کی نسبت حالات معلوم کرنے کا حکم دیا۔ وزیر نے 2 ہی دن میں لڑکی کا کھوج نکال لیا اور حاضر ہو کر بادشاہ سے عرض کیا، جہاں پناہ یہ ایک بہت ہی غریب محتاج بڑھیا کی نواسی ہے، روٹی تک پیٹ بھر کر نصیب نہیں، مگر لڑکی تو گدڑی کا لال ہے۔ بادشاہ کو تو لڑکی کی لگی ہوئی تھی، اس نے فوراً ہی سپاہی کو بڑھیا کے پاس بھیجا۔ وہ ڈرتی ہانپتی کامتی سفید چادر میں لپٹی ہوئی حاضر ہوئی۔ تخلیہ ہو گیا، بڑھیا سہمی ہوئی کھڑی تھی کہ بادشاہ نے کہا، بڑی بی میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے اپنی دامادی میں قبول کرو۔ بڑھیا ہکا بکا رہ گئی، جواب دیتی تو کیا دیتی۔ جب بادشاہ نے زیادہ کہا تو بولی، لونڈی حاضر ہے لیکن خداوند بے ماں باپ کی یتیم لڑکی ہے، یہ اس کا بال بیکا ہوا تو عرش ہل جائے گا۔ بادشاہ نے بڑھیا کو تسلی دی، بات پکی ہو گئی۔ ادھر بڑھیا رخصت ہوئی، ادھر شہر میں غل مچ گیا، 1000 منہ 1000 باتیں، طرح طرح کی خبریں اڑنے لگی، کوئی کچھ کہتا تھا تو کوئی کچھ۔ سب کو حیرت تھی کہ بادشاہ کیا دیکھ کر ایک فقیرنی پر رچے ہیں، دنیا بھر کی شہزادیاں کیا اڑ گئی تھی۔ مثل مشہور ہے کہ نکلی ہونٹوں اور چڑھی کوٹھوں۔ یہ خبر محلات میں پہنچی، دوسری بیگموں نے جو سنا تو دل بھر ہو گئی کہ اللہ، موری کی اینٹ بھی اب چوبارے چڑھنے لگی۔ بادشاہ کا دل تو نہیں لٹ گیا، ایک بھیک منگی ہماری سوتن بن کر آئے گی۔
वो 6 की 6 बादशाह की बेग में जलती कुड़ती रही, लेकिन वहाँ गरीब जाति के बाग खुल रहे थे। निकाह का दिन मुकर्रर हो गया, बारात चढ़ी, शादी हुई और चरखा काटने वाली बुढ़िया की नवासी बादशाह की 7वीं मलका बनकर महल में आ गई। खुदा की शान, एक दिन महल में खबर उड़ी कि बुढ़िया की नवासी का पैर भारी है। देखो क्या होता है, लड़का या लड़की। इस खबर से अब बादशाह की खुशी और सौतनों के जलापे का क्या पूछना। जितना बादशाह का उससे चाव बढ़ता, दूसरी पेट में चली मरती। बच्चा होने के दिन बिल्कुल करीब थे, अचानक बादशाह को एक मुहिम पेश आ गई। बगैर जाए चारा ना था, मजबूरन जाना पड़ा। जाते वक्त वो अपनी 7वीं मलका के पास आया और कहने लगा, जी तो नहीं चाहता कि तुमको सौतनों में अकेला छोड़कर जाऊं। सल्तनत के काम है, जाना भी जरूरी है। जरा होशियारी से रहना। बच्चा पैदा हो तो पूरी पूरी निगरानी करना। लो, ये चांदी की घंटी है, इसे अपने पास रखो। जब बच्चा पैदा होने का वक्त आएगा तो इसको बजा देना। मैं जहाँ भी होऊंगा, अल्लाह ने चाहा फौरन आ जाऊंगा, लेकिन याद रखना कि झूठ मूठ घंटी ना बजाना। अच्छा, खुदा हाफिज। बुरे दिन कहकर नहीं आया करते। बादशाह को गए हुए दूसरा ही दिन था कि 6 सौतने एका करके बुढ़िया की नवासी से मिलने आए। बातें करते करते जो घंटी पर नजर पड़ी, पूछने लगी, हुआ ये क्या खिलौना है? झुंझुना बजाने की तुम्हारी आदत अभी गई नहीं? और सबने मिलकर गरीब को ऐसा उल्टा सीधा लिया कि उसने घंटी की सारी हकीकत कह दी। ये सुनते ही 6 ने खूब कह लगाए, उसको बेवकूफ बनाया और उसे कहा कि क्या तुम में अकल नहीं है? ऐसा भी कहीं हो सकता है? इस मुई इतनी सी घंटी की आवाज महल के बाहर तक तो जाने से रही। वो खुदा जाने कितने दिन के रास्ते पर होंगे, उन तक पहुँचेगी भी कि नहीं। खूब रही तुम्हारी तो। हमारे हजूर ने बेचारी को क्या दम दिया है। दूसरी बेगम बोली, बहन उनका मतलब तो कुछ और होगा, इसी की समझ में ये आया होगा। तीसरी कहने लगी, इतना बड़ा बादशाह हंसी तो करने से रहा, ये भी इतनी भोली नहीं कि वो कुछ कहे और ये समझ ना पाए। चौथी कहने लगी, जाओ भी, ऐसी भोंडी समझ खुदा किसी को ना दे। अरीबी घंटी ना हुई, जादू का पुतला हुई कि यहाँ बजी और वहाँ बादशाह का दिल हिला। पांचवी बोली, तुमने तो जरा सी बात का राई का पहाड़ बना दिया, एक दफा बजाकर ही क्यों ना देख ले, सब झूठ सच खुल जाएगा। भोली भाली लड़की उन 6 बेगमात की बातों में आ गई। बादशाह का मना करना याद न रहा। दिल में सोचकर कि वाकई आजमाना तो चाहिए, घंटी बजा दी। घंटी को बजे कोई 10 मिनट हुए होंगे कि खबर आई बादशाह तशरीफ ले आए हैं। वो 6 की 6 तो चुपके से अपने अपने महलों में चली गई। बादशाह ने जो आकर देखा तो अभी तो बच्चा होने का आसान गुमान भी नहीं था। बहुत बिगड़ा, खफा हुआ कि ये क्या हमाकत थी। मंजिल पर पहुंचकर आराम भी न लेने पाया था कि उल्टे कदमों आना पड़ा। बुढ़िया की बेटी काम गई, बोली, मुझे तो यकीन ही नहीं आता था कि आप तक इस नन्ही सी घंटी की आवाज कैसे पहुंचेगी। बादशाह ने कहा, खैर अब तो यकीन आ गया ना। देखो फिर अगर तुमने ये बेसबब घंटी बजाई ना तो अच्छा नहीं होगा, उम्र भर पछताओगी। 2-4 दिन टाल कर फिर वो बैरने एक एक करके जमा हुई और फिर वही घंटी का किस्सा छिड़ गया। कोई कहती ऐसी नन्ही आवाज पहुंच गई ना हो, तुम्हें यकीन आ गया होगा। कोई कहती कहीं पास ही होंगे, कोई काम निकल आया होगा तो वापस आए होंगे। कोई कहती घंटी ना हुई, इसराफील का सूर हो गया। एक जो सबकी उस्तानी थी बोली, बहन अब के और घंटी बजाकर दिखा दो। इन बाकी मलकाओं को तो यकीन ही नहीं आता, कहीं इनके मुंह पर खाक तो पड़े। वो बेचारी डरी हुई थी, बतेहरा इनकार किया, मगर कहाँ ये एक और कहाँ वो इतनी। उन शैतानों के बहकाए में आ गई। घंटी का बजना था कि बादशाह की सवारी के आने का गोल मचा। वो 6 मलकाएं तो आहट पाते ही सटक गईं। इसमें कोड़ी का सहम के मारी बुरा हाल हुआ। बादशाह को जो देखा तो मुंह फक, हाथ पांव ठंडे पड़ गए। इधर बादशाह जो भरी कचहरी में से उठकर और सारे जरूरी काम छोड़कर घबराया हुआ चला आया था, ये मालूम करके कि फिर मैं तमाशा बनाया गया हूँ। बच्चा तो फिर भी नहीं हुआ, वो आग बगोला हो गया। उस बेचारी से बहुत पूछा कि बदनसीब, मेरे मना करने पर भी तुझे असर नहीं हुआ। एक मर्तबा तो खैर थी, दूसरी दफा क्यों घंटी बजाई? शामत की मारी ऐसी उसकी सिट्टी गुम हुई कि असली बात कह ही ना पाई। इतना भी मुंह से न फूटा कि ये सारे काम मेरी सौतनों के हैं। औलाद का चाव था और क्या करता, डांट डपट कर वापस चला गया। साथ ही ये भी कहा कि अब अगर तू घंटी बजाते बजाते उसको तोड़ भी देगी ना तो भी नहीं आऊंगा। मैं समझ गया कि तू किसी के बहकाए में आ गई है। तेरी किस्मत ही खराब हो तो अब मैं क्या करूं? अब बैठी अपने किए को भुगत। सुबह शाम में बच्चा होने वाला तो था ही।
صبح بادشاہ روانہ ہوا اور شام کو بچہ ہونے کے آثار شروع ہوئے۔ بڑھیا کی نواسی کا کون تھا جو اس کی دیکھ بھال کرتا؟ محل کا بچہ سوتنوں کا طرفدار۔ ایک بادشاہ اس کا دیوانہ تھا، وہ بھی خفا ہو گیا تھا اور منزلوں دور چلا گیا تھا۔ چیوں بیگمیں آ کر بیٹھ گئی، منہ پر تو اس کی خوشامد کر رہی تھی لیکن دل میں دشمنی کے سامان تھے۔ بڑھیا کی نواسی نے گھنٹی بجائی مگر بادشاہ کب سنتا تھا، یہاں تک کہ بجاتے بجاتے گھنٹی ٹوٹ گئی اور بادشاہ نہ آیا۔ جب وہ بادشاہ کے آنے سے مایوس ہو گئی اور 6 ملکاؤں نے جب یہ جان لیا کہ اب بادشاہ نہیں آئیں گے تو انہوں نے کہا کہ بی بی، ہمارے ہاں کا دستور ہے کہ جب کسی محل میں بچہ ہونے کو ہوتا ہے تو زچا کی آنکھوں سے پٹی باندھ دیتے ہیں اور ملکاؤں کے سوا کسی کو آنے نہیں دیتے۔ وہ غریب اپنی مصیبت میں تھی، دوسرے جھونپڑے کی رہنے والی، محلوں کا رواج کیا جانے، جیسا کہا اس نے کر لیا۔ دائی کو پہلے سے ہی سانٹ لیا گیا تھا، بچے پیدا ہوتے ہی غائب کر لیے اور تھوڑی تارا ماتھے چاند والے لڑکے اور لڑکی کے بدلے کتیا کے 2 پلے منگا کر ہول مچا دیا کہ لو، یہ تو کیسی عورت ہے جس کے ہاں آدمی کے بچوں کی جگہ کتے کے پلے ہوئے ہیں۔ آنکھوں سے پٹی جو کھولی تو وہ بیچاری بھی دھک سے رہ گئی۔ ایک تو تکلیف سے نڈھال تھی، اوپر سے یہ آفت آئی کہ بچے ہوئے تو کتے کے۔ 8ویں دن بادشاہ سلامت بھی آ گئے، لاکھ ناراض سہی لیکن دل میں شاد تھے کہ خدا نے یہ دن دکھایا کہ اندھیرے گھر میں ایک چھوڑو 2 چراغ جلے۔ ہنستے ہوئے محل میں پہنچے، چاروں طرف سناٹا تھا۔ حیران تھے کہ یہ کیسی اداسی ہے، نہ نوبت ہے نہ شادیانے۔ جس سے پوچھا اس نے سر جھکا لیا۔ زچا خانہ میں جا کر دیکھا تو عجب تماشا تھا، کیسے بچے، کہاں کا تھوڑی پر تارا اور ماتھے پر چاند، کتے کے پلے کوں کوں کر رہے تھے۔ بیگم بادشاہ کو دیکھ کر رونے لگی۔ اتنے میں دوسری ملکائیں آ گئیں، خوب جلے پھپولے پھوڑے۔ دیکھا اپنی پرستان کی پری کو، یہی بچے ہیں نا جن کے ماتھے پر چاند اور تھوڑی پر تارا ہے۔ برا نہ مانیے، ہم تو جانتے ہیں کہ یہ کوئی چڑیل ہے، کہیں آدمی کے ہاں بھی کتے کے پلے ہوتے ہیں۔ یکا یک جو امیدوں پر پانی پھرا، ادھر ملکاؤں کے تانے سنے اور آنکھوں سے کتے کے پلے پڑے ہوئے دیکھے۔ غصے میں بادشاہ لال ہو گیا۔ حاکم کے مزاج کو کون سنبھالے، حکم دیا کہ اس کتیا کو ابھی محل سے نکال دو، چوٹی کاٹ لو، ٹاٹ کے کپڑے پہنا کر پھٹا ہوا بانس ہاتھ میں دے دو تاکہ سارے دن شہر میں کوے اڑاتے پھرے۔ بادشاہ کا حکم کون ٹالتا، فوراً بیچاری کو نکال دیا، سر منہ ڈالا، ٹاٹ کی کفنی گلے میں، بانس ہاتھ میں، دن بھر کوے اڑاتی پھرتی۔ لوگ دیکھتے، کوئی ہنستا، کوئی افسوس کرتا۔ یہاں تو یہ رہی، بچوں کی سنو کے دائی نے جب گھر آ کر انہیں دیکھا تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ دل کانپ گیا کہ ایسی پیاری پیاری جانوں کو کیوں کر مارا جائے، مگر ملکاؤں کے غضب سے بھی ڈرتی تھی۔ دیر تک سوچتی رہی، کبھی کنویں میں ڈالنے کا ارادہ کیا، کبھی خیال کیا کہ کسی ٹوٹی ہوئی قبر میں چھپا دے، بے دودھ مر کر رہ جائیں گے، کبھی دریا میں بہا دینے کی سوچی۔ برے کام میں وہم ہی وہم آتے ہیں، دل میں دکھ پکڑتی۔ آخر یہ ترکیب سمجھ میں آئی کہ تندور میں رکھ کر پھونک دوں، ذرا سی دل میں جل کر راکھ ہو جائیں گے، کسی کو کانوں کان خبر بھی نہ ہوگی۔ دن دہاڑی ایسا کرنے کی ہمت بھی نہ ہوئی، پھر کیا کرے، یکا یک کسی خیال سے چونکی۔ پچھواڑے کمہار رہتے تھے اور ان کے ہاں آوا چڑھتا تھا۔ سوچا کہ دن گزار کر جس وقت جھٹپٹا ہو، آنکھ بچا کر آوے کے کسی مٹکے میں رکھ دوں، صبح تک ان کا نشان بھی نہیں رہے گا۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا۔ آوا تیار تھا، آگ دینے کی دیر تھی، یہ دبے پاؤں گئی اور چپکے سے ایک مٹکے میں دونوں بچوں کو ڈال آئی۔ جس کو خدا رکھے اسے کون چکھے۔ کمار اور کمہاری تھکے ہارے ذرا دم لینے کو لیٹے تھے کہ آنکھ لگ گئی، ایسے بے خبر ہو کر سوئے کہ آوے کو آگ بھی نہ دی۔ سویرے جو کمہار اٹھا تو آوے کو ٹھنڈا دیکھ کر کمہاری سے لڑنے لگا۔ ارے میں تو اونگا ہی تھا، تجھے بھی سانپ سو کیا، نہ مجھے اٹھایا نہ آپ اٹھی، دیکھ تو دیدے پھوٹی، آوا ٹھنڈا پڑا ہے، اب جو گاہک آئیں گے وہ کس کی جان کو روئیں گے۔ کوتوال کو مٹکے دینے تھے، وہ تو جان بھی لے کر نہیں چھوڑے گا۔ لڑتے جھگڑتے دونوں کھرپل سے باہر نکلے۔ آوے کے پاس جا کر دیکھا تو بے آگ دیے آوا تیار ہے، سارے برتن پک کر لال ہو گئے ہیں، آج بھی ایسی اچھی لگی ہے کہ نہ کوئی چرخا ہے نہ کسی میں کالے کالے دھبے آئے ہیں۔ بہت حیران ہوئے، ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ دل میں سوچتے تھے کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے، ایسا تو نہ دیکھا نہ سنا۔ کمہاری اس اچنبے کی بات سے ڈرتی بھی جاتی تھی کہ یکا یک ایک مٹکے میں سے ہوں ہوں کی آواز آئی۔ پہلے تو اوسان خطا ہو گئے، کمہار کو پکارا، اجی سنتے ہو یہ بچوں کی بلکنے کی آواز کیسی آ رہی ہے؟
कुम्हार के भी ओसान जाते रहे। फिर जी करके दोनों आगे बढ़े तो मटके में देखा तो 2 चांद के टुकड़े पड़े अंगूठे चूस रहे थे। उन्हें अल्लाह ने सब कुछ दे रखा था, लेकिन औलाद ना थी। दोनों के दोनों निहाल हो गए कि बोया ना जोता, अल्लाह ने दिया बोता। एक छोड़ो वो भी 2-2, और ऐसे भगवान बच्चे कि जिनकी वजह से आवा बे आग ही पक गया। जल्दी से दोनों बच्चों को निकाल उसने छाती से लगाया, खुरपन में आए। कुम्हारी माथे पर पट्टी बांध जल्दी से पलंग पर लेट गई। बच्चे आगे लिटा लिए। कुम्हार चुपके चुपके जिचा खाना का सारा सामान ले आया। पास पड़ोस की औरतों को खबर हुई। एक आती है, अरे कल्लो की बहू, तू तो बड़ी कवि है, हमें तो तूने खबर भी ना की। दूसरी कहती, हमें तो सान गुमान भी ना था, ये तो बड़ी पूरी निकली। और देखो यहाँ तो चूहे का बच्चा भी ना होता था, और जब हुए भी तो 2-2। अल्लाह करे जीते रहे, माँ की ममता ठंडी रहे। बच्चों को देखकर औरतें कहने लगी, कैसे बच्चे हैं, दिखते हैं जैसे परियों के बच्चे हैं। मोहल्ले भर में उधम मच गया। एक आता था एक जाता था। 2-4 दिन का सवांग था, खत्म हो गया। बच्चे कुम्हारी की गोद में पड़ने लगे। दांत निकले, घुटनों चले, दूध छुटे, यहाँ तक के दोनों बहन भाई पैरों चलने के काबिल हुए। मेले ठेले में सौदा सर्फ के लिए जब कुम्हार जाता तो दोनों को साथ ले जाता। कुम्हार काला सया और बच्चे चंदे आफताब चंदे महताब। जो देखता ताजुब करता। अमीर हो या गरीब, अच्छा हो या बुरा, मौत को किसी पर तरस नहीं आता। ये दोनों कोई 12-12 साल के होंगे कि कुम्हार बीमार पड़ा। 8 ही दिन में खुटिया से लग गया। जीने की आस न रही तो बीवी से बोला, मेरा अब आखिरी वक्त आ गया है, मेरी बात मानो। इन बच्चों का दिल मैला ना हो, ना मालूम किसके लाल हैं। हमारे ऐसे भाग कहाँ थे। अल्लाह की मेहरबानी से धन दौलत सब कुछ है, किसी चीज की कमी नहीं। देखो इन्हें कोई दुख ना होने पाए। कुम्हारी ये सुनकर रोने लगी, मगर आई हुई ना रोने से टलती है ना हंसने से। कुम्हार मर गया। कुम्हारी को बड़ा दुख हुआ। 50 बरस का साथ छूटा बच्चों के ख्याल से कि वो ना कुड़े। चिल्ला कर रो भी नहीं सकी, अंदर ही अंदर घुटने लगी। और 15 दिन भी नहीं गुजरे थे कि वो भी ढेर हो गई। ऐसी पड़ी कि मरकर ही उठी। कुम्हार और कुम्हारी के मरने के बाद उन बच्चों का कुम्हारों में क्या दिल लगता। बर्तन बनाने उन्हें आते नहीं थे, ना ये काम उनके बस का था। खुरपल काटने को दौड़ती थी। चारों तरफ बर्तनों के अंबार बुरे मालूम होते थे। कुम्हार की औलाद होते तो और बात थी। दोनों ने सलाह मशवरा करके घर बार, गाट कबार, बर्तन भांडा सब बेच डाला और कुम्हारी की गड़ी दबी जमा पूंजी से एक अच्छे भले मानसों के मोहल्ले में एक मकान खरीद कर रहने लगे। लड़का जब बाहर निकलता उसके माथे पर चांद देखकर लोग ठहर जाते, किसी न किसी बहाने से उसका हाल पूछते। आखिर तंग आकर उसने घर से निकलना कम कर दिया। निकलता भी तो सर पर पगड़ी बांध कर निकलता था कि माथा छुप जाए और चांद न दिखाई दे। लेकिन मर्द जात सैर सपाटे के बगैर क्यों कर रह सकता था। बुढ़िया की नवासी जिस दिन से महल से निकाली गई थी उसका यही काम था कि बांस लिए बाजारों में कव्वे उड़ाती फिरती थी। ये लड़का उसके सामने से गुजरता तो वो टिकटिकी बांध कर उसे देखा करती। जहाँ तक नजर काम करती उसका पीछा ना छोड़ती। आंखों से ओझल हो जाता तो दिल महसूस कर रह जाती। वो नहीं जानती थी कि ये लड़का कौन है और क्यों इस बदनसीब का दिल उसकी तरफ खींचता है। कभी कभी उसके दूध का उबाल उसे दीवाना बना देता और वो धाड़े मार मार कर रोने लगती। आखिर उससे रहा ना गया। एक दिन लड़का उधर से गुजरा तो वो उसके पीछे हो ली। घर देख लिया और उस ताक में रही कि अंदर जाकर इसका हाल मालूम करे। लेकिन लड़का इस फुर्ती से अंदर जाकर दरवाजे की कुंडी लगा लेता था कि वो देखती की देखती रह जाती थी। शहर से दिन उकता गया और लोगों की पूछगछ ने उसका नाक में दम कर दिया तो उसने एक घोड़ा खरीदा। 2-4 दफा गिर पड़कर उस पर सवारी सीखी। अब ये शहर के बाहर जंगल में निकल जाता। सुबह से शाम तक सैर करता फिरता। रफ्ता रफ्ता शिकार की धुन समाई। इस शौक में दूर दूर निकल जाता। एक रोज खुदा का करना ऐसा हुआ कि बादशाह भी शिकार के लिए आया हुआ था। हिरन सामने आया। दोनों ने घोड़े डाल दिए। कई कोस तक दोनों ने पीछा किया। हिरन तो छलावा हो गया। दोनों एक दरख्त के साए में दम लेने को टिक गए। गर्मी का मौसम था। लड़के ने पगड़ी उतार कर हवा खानी चाहिए। बादशाह की जो नजर पड़ी तो माथे पर चांद। दिल पर एक घूसा सा लगा। मोहब्बत में अंदर ही अंदर जोश मारा। चाहता था कि भड़कर उसे गले लगा ले कि लड़का घोड़े को एड़ लगाकर ये जा वो जा। बादशाह ने बतेहरा चाहा कि उसको रोके, उसका हाल पूछे, मगर वो कब रुकता था। एक बिजली थी कि कूद कर गायब हो गई। उसकी आंखों में आंसू भर आए। सोचा हो ना हो ये उसी बुढ़िया की नवासी का लड़का है। माथे पर चांद और किसके होगा। बाग में जो उस लड़की की जुबानी पेशन गोई सुनी थी उसको वो याद आ गई। कलेजे पर सांप लौटने लगे। समझा कि मेरे साथ कोई चाल हुई है। जरूर जुड़वा बच्चे हुए होंगे।
बाकी 6 मलकाओं ने दगा दिया होगा, इसी सोच में परेशान घर आया। लड़के की तलाश शुरू की। खुद भी रोज बिलानागा शिकार के बहाने जंगल जंगल मारा मारा फिरता और घंटों एक एक दरख्त के नीचे खड़ा होकर चारों तरफ निगाहें दौड़ाता रहता। मलकाओं ने भी सुन लिया कि बादशाह ने कोई लड़का ऐसा देखा है जिसके माथे पर चांद था और अब उसकी तलाश है। उनके पांव तले से तो जमीन निकल गई कि अगर दाई ने उन्हें जिंदा छोड़ दिया था तो बड़ा गजब हुआ। मुर्दार ने अपने साथ हमारी भी जान ले ली। उसी वक्त दाई को बुलाया गया। उसने लाखों कस्में खाई कि मलकाओं, मैं अगर झूठ बोलूं तो मेरे दीदे घुटनों के आगे आए। मैंने तो दोनों बच्चों को उसी दिन रात से पहले कुम्हार के आवे में रख दिया था। उनकी तो राख भी उड़ गई होगी। ये कोई और होगा। अच्छा सब्र करो, आज ही पता लगाती हूँ। तुम इतनी हरासा क्यों हुई जा रही हो सारी की सारी? दाई एक कुटनी थी। खोज लगाते लगाते उस मकान पर जा पहुंची जहाँ ये दोनों बहन भाई रहते थे। दुखियारियों की सी आवाज बनाकर आवाज दी। लड़की अकेली थी, भाई शिकार को गया हुआ था। उसने तरस खाकर कुंडी खोल दी, अंदर बुला लिया। सूरत देखते ही दाई के होश जाते रहे कि वाकई ये तो वही लड़की है। या अल्लाह, ये कैसे बच गए? आग ने भी इन्हें नहीं जलाया। हैरत के मारे आंखें फटी की फटी रह गई। लड़की समझी कि बेचारी को मुसीबत की मारी है। पूछने लगी, बड़ी भी भूखी हो तो खाना लाऊं? वो कुटनी बोली, वारी कई वक्त का फाका है, कोई टुकड़ा दे दोगी तो अल्लाह तुम्हारा भला करेगा, चलने की सकत भी आ जाएगी। लड़की ने खाना सामने रखा। वो खाती जाती और सोचती जाती कि अब क्या तदबीर करे जिससे इन दोनों का पाप कटे। एक दफा ही बलाएं लेकर बोली, बेटी तेरी इस जान सी सूरत के सदके क्या कहूँ, अगर एक बात हुई तो बादशाह से ब्याही जाती। लड़की कहने लगी, बड़ी भी वो क्या बात है? बुढ़िया ने कहा, खुदा रखे तुम्हारा कोई भाई तो होगा। हाँ, अल्लाह उनको जीता रखे, मेरे ही बराबर है। एलो, फिर क्या है? बेटी बकौली का फूल वो ला दे तो तुम्हारे चांद से मुखड़े को 4 चांद लग जाएंगे। बादशाह देखते ही तुम्हें अपनी बेगम बना लेगा। तो भी वो फूल कहाँ होता है? कुर्बान जाऊं, समंदर के पास ही होता है। काली पहाड़ी के नीचे झोपड़ी में जो फकीर बैठा है वो तुम्हें सब कुछ बता देगा, मगर यूं नहीं। अगर मलका बनने को तुम्हारा जी चाहता है तो भाई के सर हो जाना। दाई ने सोचा कि पहले भाई को ऐसी जगह भेजूं जहाँ से उल्टा ना आ सके। लड़की का क्या है, देर तक बातें बनाती रही। भोली भाली लड़की उसके कहने में आ गई। दिल में ठान लिया कि कुछ भी हो जाए बकौली का फूल मंगाकर ही छोड़ूंगी। दाई तो बहका सिखाकर चंपत हो गई, लड़की पर जादू सा कर गई। उसके दिल में बकौली का फूल बस गया। भाई के आते ही मुंह फुलाकर कहने लगी, जब तक बकौली का फूल ना आ जाएगा मैं हंसूंगी और ना ही बोलूंगी। अगर तुम मेरे सच्चे पक्के भाई हो तो फूल ला कर दो। वो गरीब हैरान कि ये क्या माजरा है, बकौली का फूल कैसा और इतनी जिद का क्या मतलब है। लाख समझाया कि तुम्हें किसी दुश्मन ने बहका दिया है, नाहक जिद ना करो। और खैर अगर यही जिद है तो हंसो बोलो, जिस तरह बनेगा जहाँ से बनेगा तुम्हें बकौली का फूल ला कर दूंगा। लेकिन इसका कुछ अता पता भी है तुम्हें? बहन खुश होकर बोली, काली पहाड़ी के नीचे जो फकीर रहता है उससे पूछ लेना, वो सब कुछ जानता है, तुम्हें बता देगा। दूसरे दिन लड़का अपनी बहन से रुखसत होकर घोड़े पर सफर का सामान लाद कर रवाना हुआ। चलते चलते ताकीद करके गया कि मेरे आने तक न किसी से बात करना और न ही किसी को तुमने घर में आने देना है। छोटी उम्र थी, लगभग जंगल, सफर की इंतहा मालूम नहीं। चला जाता था कि तीसरे दिन पहाड़ी नजर आई। हर तरफ देखा, न कोई झोपड़ी थी न फकीर। भूख से बुरा हाल था। एक हिरन दिखाई दिया, शिकार किया, आग जलाकर कबाब लगाए। खाने को बैठा ही था कि तरह तरह की ड्रोनी आवाजें सुनाई थी। आंख उठाकर देखा तो देव उछलते कूदते फिर रहे थे। उनके सरदार की निगाह जो लड़के पर पड़ी तो उसकी तरफ आया और कहने लगा, 24 बरस के बाद एक भूंगा नजर आया है। लड़का खौफ से थर थर कांपने लगा। कहानियों में उसने सुना था कि देव भांजे का बड़ा मान रखते हैं। इत्तेफाक से उसको याद आ गया। फौरन सलाम करके कहने लगा, मामू जान सलाम। देव ने कहा, खाक खाऊं धूल खाऊं, अब क्या भांजे को खाऊं? कहो मेरे लिए क्या लाए और इधर किस लिए आना हुआ? लड़के ने सारा का सारा हिरन सामने रख दिया और जब देव उसको चट कर गया तो कहने लगा, मामू मैं बकौली का फूल लेने आया हूँ। देव पहले तो बहुत भुनाया, फिर कुछ सोचकर बोला, पहाड़ी के उधर चला जा, वहाँ एक बूढ़ा देव मिलेगा। अगर उसे तेरी सूरत पर रहम आ गया तो काम बना हुआ समझ ले। वो मेरा चचा है, उसके सामने जाएगा तो दादा अब्बा कहकर सलाम कीजिए। लड़का आगे चला गया। पहाड़ी पार की थी कि एक बहुत पुराना हप हप करता हुआ देव मिला। वो दौड़कर उसकी तरफ आया। लड़का जल्दी से बोला, दादा अब्बा सलाम। देव ने चिल्लाकर कहा, हाँ कमबख्त, ये पोता कहाँ से निकल आया? भूंगा भी पेट में ना गया। अच्छा तू क्या चाहता है?
लड़के ने पूरी दास्तान सुना दी कि हम 2 बहन भाई हैं। बहन को किसी ने बकौली के फूल का शौक लगा दिया है, उसी की तलाश में निकला हूँ। देव बोला, बेटा बकौली का फूल लाना बड़ी जान जोखों का काम है। इंसान तो इंसान, वहाँ तक तो ऐसा वैसा देव भी नहीं पहुँच सकता। लड़के ने कहा, दादा अब्बा फूल लिए बगैर तो मैं लौटूंगा नहीं, जान जाए या रहे। लड़के की हिम्मत देखकर देव कहने लगा, अच्छा सुनो, यहाँ से एक दिन एक रात चलने के बाद एक बड़ा घना जंगल आएगा। दरख्तों की शाखें इस तरह उलझी हुई होंगी कि सांप भी नहीं निकल सकता उनमें से। जब वो जंगल आ जाए उसके पास खड़े होकर कहना, जंगल जंगल रास्ता दे। रास्ता हो जाएगा, बेखटके गुजर जाना। जंगल के आगे एक बड़ा दरिया पड़ेगा, ना नाव होगी ना डूंगा। करीब पहुंचोगे तो ये ठीकरी फेंक देना और आंखें बंद करके कूद पड़ना। अब जो आंख खोलोगे तो एक बाग दिखाई देगा, वही बकौली का बाग है। हजारों दरख्त एक ही किस्म के नजर आएंगे। उन दरख्तों के बीच में बकौली के फूल का दरख्त है। आगे तुम जानो, तुम्हारा काम। लड़का सारी बातें दिल में बिठाकर कमर बांध कर देव से रुखसत हुआ। लड़का माथे का चांद चमकाता जंगल पार करके दरिया में कूदते ही जो निकला ही तो सामने बाग था। बाहर आ रही थी, जर्द जर्द रंग के हजारहा फूल खिले हुए थे। बाग के बीच में संगे मरमर की एक बारादरी थी, मगर बाग सुनसान था, ना आदम ना आदमजाद। फिरते फिरते एक तरफ जो पहुंचा तो क्या देखता है कि एक दालान में पर्दे पड़े हुए हैं। सोने की एक चढ़ाऊ मसहरी पर एक हसीन औरत सो रही है। सरहाने सोने की और पाइंती की तरफ चांदी की छड़ी रखी है। लड़का हैरान था कि ये कैसा मामला है। देखते देखते बेदहानी में उसने दोनों छड़ियां उठा ली। फिर जो कुछ ख्याल आया तो जल्दी से छड़ियां रख दी। ये ध्यान न रहा कि आइंती की छड़ी पाइंती और पाइंती की आइंती हो गई है। छड़ियों का बदलना था कि सोने वाली औरत कलमा पढ़ती हुई उठ बैठी और हक्का बक्का इधर उधर देखकर लड़के से कहने लगी, तुम यहाँ कैसे आ गए और मुझको क्यों जगा दिया? ये तो बकौली का बाग है और 700 देव इसकी हिफाजत के लिए यहाँ रहते हैं। फौरन भाग जाओ, नहीं तो टिक्का बोटी हो जाएगी। लड़के ने कहा, जो कुछ भी हो, अब तो मैं यहाँ आ गया हूँ। अच्छा तुम ये बताओ कि तुम कौन हो? औरत ठंडा सांस लेकर बोली, मैं बदनसीब एक बादशाह की बेटी हूँ। मखना देव जो सबका सरदार है मुझको यहाँ उड़ा लाया है, मैं उसके कब्जे में हूँ। जब वो जाता है तो इन सोने और चांदी की छड़ियों से मुझे मुर्दा बना देता है और जब आता है तो फिर जिंदा कर लेता है। अब इन देवों के आने का वक्त करीब है, खुदा के लिए जल्दी कहीं छुप जाओ। उन्होंने देख लिया तो ना तुम्हें जिंदा छोड़ेंगे और ना मुझे। लड़के ने कहा, खुदा ने चाहा तो हमारा बाल भी भीगा ना होगा। तुम किसी तरह इतना पूछकर बताओ कि बकौली का फूल कौन सा है और मखना देव की मौत कैसे होगी। देवों की जान सुना है 7 पर्दों में छुपी हुई होती है। इतने में दूर सी ऐसी आवाजें आने शुरू हुई जैसे बादल गरजते हैं। औरत ने घबराकर कहा, लो अब मैं लेटती हूँ। पाइंती की छड़ी सरहाने और सरहाने की पाइंती रखकर जल्दी से फूलों के ढेर में दुबक जाओ। मूजी देव आ गया है। देव आने शुरू हुए। सबके आखिर में मखना देव झूमता झामता आया। छप्पर खट के पास जाकर शहजादी को उठाया और सू सू करके मांस गंध कहने लगा। शहजादी झल्ला कर बोली, तुम्हें तो खौखा वहम हो जाता है। यहाँ परिंदा तो पर मार नहीं सकता, इंसान कहाँ से आएगा? ऐसा ही है तो मुझको खा जाओ, रोज का पाप तो कटे। मुझे सबसे छुड़वा कर इस वीराने में ला डाला है, फिर भी तुम्हें सब्र नहीं आता। ये सुनकर देव चुप हो गया। किस्म किस्म के मेवे लाया था, दोनों ने मिलकर खाए। खा पी कर देव लेट गया और शहजादी रूखी सूरत बनाकर बैठ गई। देव ने पूछा, आज क्या बात है? किसी ने कुछ कहा हो तो जुबान काट दूं? टेढ़ी नजर से देखा हो तो आंखें निकाल डालूं? शहजादी झूठ मूठ के आंसू बहाकर बोली, तुम्हारे होते हुए मुझे कौन हाथ लगा सकता है? रोना तो यूं आया कि 100 दुश्मन 100 दोस्त। अगर खुदा ना ख्वास्ता कुछ ऐसी वैसी हो गई तो मेरा क्या हशर होगा? तुम तो आई से मरोगे, मैं बेआई मरूंगी। देव ने कह कहा लगाकर कहा, मेरी मौत कहाँ? शहजादी ने ताज्जुब से पूछा, तो क्या तुम मरोगे नहीं? देव ने कहा, मेरी जान ऐसी जगह है जहाँ फरिश्ता भी नहीं पहुँच सकता। शहजादी बोली, झूठ ना बोलो, कहीं ऐसा भी हुआ है कि जानदार कहीं हो और जान कहीं हो? अच्छा बताओ, कहाँ है तुम्हारी जान? जब तक ये न जान लूंगी कि तुम्हारी जान कहाँ है तो मुझे सब्र नहीं आएगा। देव कहने लगा, शहजादी मेरी मौत सिर्फ उसी शख्स के हाथ से है जिसके माथे पर चांद होगा। अव्वल तो दुनिया के पर्दे पर ऐसा कोई आदमजात ही नहीं जिसके माथे पर चांद हो। अगर पैदा हो भी जाए तो यहाँ पहुँच नहीं सकता। जंगल, दरिया और देवों के होल उसे कब छोड़ते हैं? फिर अगर कोई ऐसा किस्मत का धनी है कि हर जगह से बचकर यहाँ आ ही पहुँचा हो तो उसे ये किस तरह मालूम होगा कि मेरी जान कहाँ है? तो मुझे तो बता दो।
देखो, वो जो सामने दरख्त है ना जिसमें कोई फूल नहीं, उस पर अगर कोई मेरा नाम लेकर हाथ मारेगा तो उसकी जड़ के पास एक होज निकल आएगा। उस होज की तह में लोहे का एक संदूक है, उसके अंदर संदूकची है, संदूकची के अंदर एक भंवरा है, भंवरे में मेरी जान है। दरख्त पर हाथ लगते ही मुझे खबर हो जाएगी। अब अगर किसी ने इतनी जल्दी की कि मेरे आने तक भंवरे को निकाल कर मसल डाला तो मैं मर जाऊंगा और इस दरख्त में एक फूल निकल आएगा, वही गुले बकौली है। लेकिन भंवरे को मसलने में अगर खून की एक बूंद भी जमीन पर गिरी तो मेरे जैसे हजारों और देव पैदा हो जाएंगे और फिर उस शख्स की खैर नहीं। शहजादी कहने लगी, ओह, अब मुझे तसल्ली हो गई है। अगले दिन सुबह होते ही देव तो शहजादी को मुर्दा बनाकर अपने लश्कर के साथ सैरो शिकार के लिए रवाना हुआ। लड़का शहजादी के छप्पर खट के पास आया, सरहाने की छड़ी पाइंती और पाइंते की सरहाने रखी। शहजादी उठकर बैठ गई, फिर जो कुछ देव से बातें हुई थी उसे सुनाई। शहजादा खुश हो गया कि मेरे ही माथे पर चांद है, अब मैं इसे कब छोड़ता हूँ। फौरन बेफूल के दरख्त पर हाथ मारा, होश जाहिर हुआ। दरख्त पर हाथ मारना था कि लीजियो पकड़ियो चोर आ गया का हुल मचना शुरू हो गया। लड़के ने जल्दी से होता मारकर संदूक निकाला, उसमें से संदूकची निकाली। संदूकची के अंदर डिबिया थी, उसे खोलकर भंवरे को दोनों हाथों की हथेलियों में रखकर मसल डाला। भंवरा का मसला क्या, क्यामत ही क्यामत आ गई। ऐसी ड्रोनी ड्रोनी आवाजें आई, ऐसा अंधेरा छाया, ऐसी बिजलियां गूंजी कि शहजादी और लड़का दोनों दहल गए। डर के मारे आंखें बंद कर ली। खुदा खुदा करके आवाजें बंद हुई और आंख जो खोली तो एक बदसूरत देव की लंबी लहकारी लाश पड़ी थी और उस दरख्त में एक बड़ा सा फूल खिला हुआ था। बाकी सारे दरख्त गायब थे, न बाग था न बारादरी। एक खुश्क तालाब में शहजादी बैठी हुई थी। फूल तोड़ो शहजादी को साथ फूल तोड़ा और शहजादी को साथ लेकर लड़का चलने के लिए तैयार हुआ, मगर जाए किधर। तिलिस्मी कारखाना तो धर्म भरम हो चुका था। सामने एक पहाड़ी दिखाई थी, उसी तरफ चला कि शायद रास्ते का सुराग मिले। पहाड़ी का पार करना था कि सारा समा ही बदल गया। अपना घोड़ा चल रहा था, ये तो वही काली पहाड़ी थी जहाँ बकौली के बाग के पहरेदार मिले थे। ना जंगल, ना कोई निशान था, ना दरिया। घोड़े पर बैठकर शहजादी को अपने आगे बिठा लिया और चला चल शहर में पहुंच गया। घर आया, बहन खुश हो गई कि भाई फूल तो फूल अपने लिए चांद सी दुल्हन भी ले आया है। 2-4 दिन आराम लेकर फिर वो शिकार को निकला। खुदा की शान बादशाह भी शिकार के बहाने माथे चांद वाले लड़के की तलाश में फिर रहा था। इत्तेफाक से एक बारासिंगा भी आ गया। दोनों ने घोड़े दौड़ाए। लड़के की पगड़ी एक दरख्त से उलझ कर गिरी, उसे उठाने के लिए घोड़ा रुका। माथे का चांद चमका, बादशाह की नजर जो पड़ी वो भी पास आ गया, घोड़े से उतरा। दोनों एक दूसरे की सूरत देखने लगे। मोहब्बत के मारे बादशाह बेताब था। आखिर उसे रहा ना क्या, हाथ पकड़कर नाम पूछा, मकान का पता दरियाफ्त किया। इतने में बादशाह के साथी भी आ गए। बादशाह अपने महल को और लड़का अपने घर की तरफ रवाना हुआ। रात हो गई थी। बादशाह ने जू तू करके रात काटी। सुबह होते ही बादशाह अकेला घोड़े पर सवार हुआ, माथे चांद वाले लड़के के घर पहुंचा। लड़का बादशाह को देखकर हैरान हो गया। घर के अंदर ले जाकर बिठाया, बड़ी खातिर की। थोड़ी तारे वाली लड़की को जो देखा तो बादशाह का दिल बेकाबू हो गया। खून जोश मारने लगा। जी चाहा कि उसे गले से लगा ले, लेकिन मजबूर था। पराई लड़की से कैसे बात करता। शहजादी जो बकौली के बाग से लड़के के साथ आई थी, उसने ये सारी बातें देखी। देव के पास रहते रहते उसने एक ऐसा मंत्र सीख लिया था जिसका वो चाहती थी सारा अगला पिछला जान जाती थी। माथे चांद और थोड़ी तारे वाले बहन भाई के हालात अभी उसे मालूम हो गए थे। अब जो उसने बादशाह की ये हैरानी देखी, सामने आई और हाथ बांधकर अर्ज किया, हजूर आप परेशान ना हो, ये आप ही के बच्चे हैं। बुढ़िया की नवासी के लिए जो किसी ने पेशन गोई की थी उसका हर हर्फ सच्चा था। 7वीं बीवी के साथ आपकी मोहब्बत देखकर सारी मलकाएं जल गई थी और जब इसके यहाँ बच्चा हुआ तो ये खबर उनको मालूम हुई। उनके हसद का तो फिर ठिकाना ना रहा। उन्होंने शरारत की। ये उन्हीं के करतूत थे कि इस बेचारी से 2 दफा घंटी बजवाई थी। फिर जिस वक्त ये बच्चे हुए तो उन्हें गायब करके कुतिया के पिल्ले रख दिए और उस गरीब बेगुनाह की तरफ से आपका दिल ऐसा फिरा कि आपने उसे कव्वे उड़ाने बना दिया। आपकी बाकी 6 मलकाओं ने दाई के हाथों बच्चों को मरवाना चाहा। उसने कुम्हार के आवे में उन्हें रख दिया, लेकिन मारने वाले से बचाने वाला कवि है। कुम्हार आवे में आग देनी भूल गया। सुबह को बर्तन भी पके पकाए मिले थे और ये भी जिंदा सलामत थे। कुम्हार ने उन्हें अपनी औलाद की तरह पाला पोसा और अब ये जीते जागते आपके सामने हैं। दिनों की गर्दिश थी, अल्लाह ने निकाल दी। ये कहानी सुनकर बादशाह चीखे मार मार कर रोने लगा। दोनों बच्चों को गले लगा लिया। दोनों बहन भाई बाप के गले में बाहें डाले देर तक खुशी के आंसू बहाते रहे।
تیروں کی بھڑاس نکل گئی تو بادشاہ ان تینوں کو ساتھ لے کر فوراً محل میں پہنچا اور جاتے ہی ادھر تو اپنی ساتویں بیوی کے لیے پالکی بھیجی کہ پوری عزت کے ساتھ سوار کر کے اسے محل میں لے آؤ، اور ادھر جلادوں کو حکم دیا کہ ابھی ان باقی 6 ملکاؤں کو جنگل میں لے جاؤ اور آدھا زمین میں گاڑ کر انہیں تیروں سے اڑا دو۔ ان سب کاموں سے فراغت پا کر بادشاہ محل میں بیوی کے سامنے آیا، شرمندگی سے سر جھکا دیا، اپنی جلد بازی اور بے انصافی کی معافی مانگی، لڑکے کی بقاولی کے باغ والی لڑکی کے ساتھ بڑی دھوم دھام سے شادی کر دی اور سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔ صبر کرنے والوں کو صبر کا اور ظالموں کو ظلم کا پھل ملا۔ جس طرح ان سب کے دن پھرے تھے، خدا سب کے دن پھیرے۔